ایک طرف سے گرین سگنل چل رہا ہے، ایک طرف سے ریڈ سگنل چل رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا ٹکراؤ ہونا ہے، اور ٹکراؤ سے پھر کیا ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی نقصان ہوتا ہے۔ دوسری اس سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ون وے پہ ڈرائیو کرنا۔ ون وے پہ اگر آپ دنیا کے باقی ممالک کے قوانین دیکھ لیں تو بندہ بھی جیل میں ہوتا ہے، گاڑیاں بھی ضبط ہوتی ہیں، گاڑیاں امپاؤنڈ ہو جاتی ہیں، 2 سال تک، 3 سال تک لوگوں کی گاڑیاں، 6 ماہ تک بھی لوگوں کی گاڑیاں امپاؤنڈ ہوتی ہیں۔ تو میرا مقصد ہے کہ جی ٹریفک قوانین جو ہیں وہ لوگوں کی بہتری کے لیے کیے گئے، ہمارے کراچی کے بھائیوں بہنوں کی بہتری کے لیے کیے گئے، اور اس میں قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانا۔ لوگ عدالتوں میں گئے، عدالتوں کا احترام ہے، لیکن عدالتوں میں بھی حکومت سندھ کا موقف جو ہے وہ فرم ہے۔ کراچی کو اس وقت کی انفراسٹرکچر کے لیے بہت بہتری کے لیے کام چل رہے ہیں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس پہ کام چل رہے ہیں۔ سندھ حکومت، کے ایم سی، جو ہمارے ٹاؤنز ہیں، سب مل کر بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کراچی کے کچھ چیلنجز ہیں جس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن میں یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی کلیئر ڈائریکشنز ہیں، انہوں نے سارے محکموں کو، بلدیات کے محکمے کو، جو ہمارے میونسپل محکمے، ان سب کو سختی سے ہدایتیں دی ہوئی ہیں کہ آپ ان قوانین کو جو ہے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں۔ آپ کو بہت جلد بہتری نظر آئے گی۔ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ مارچ تک ہم اپنے کافی پروجیکٹس کمپلیٹ ہو جائیں ہمارے۔ جو اس وقت کراچی کے لوگوں کو، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ٹینیور میں سب سے بڑے میں بڑی خوشخبری ملی ہوگی وہ شاہراہ بھٹو کی ملی ہوگی۔ شاہراہ بھٹو پہ آپ جائیں تو آپ کو اب اس کے ٹول پہ بھی بہت بڑی رش نظر آ رہی ہوتی ہے، تاکہ لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں، ایک بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ سہولت ہے، اور جب یہ اس کو M9 سے ملے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ پروجیکٹ جو ہے کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اسی طریقے سے لنک روڈز پہ بھی کام چل رہے ہیں، ریڈ لائن BRT پہ بھی کام جو ہے وہ جو ایک التوا پھنسا ہوا تھا، آج بھی 5 بجے بورڈ کی میٹنگ ہے، اور اس میں وہ ایک میٹر ہمارا ریزالو ہو جائے گا، اس کے بعد کیبنٹ میں چلا جائے گا۔ پھر انشاءاللہ تعالی ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو ایٹ گریڈ جو ہے کام وہ بھی ہم ٹائملی کمپلیٹ کر لیں، باقی بھلے BRT بعد میں بنتی رہے، اسٹیشن بعد میں بنتے رہیں، وہ ہم کام جلدی کریں۔ تو کراچی کے شہری، میں آپ کو عرض کروں گا، ٹھیک ہے لوگ آپ کی کافی شکایتیں جائز بھی ہیں، لیکن یہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے جتنے گریونسز ہیں انشاءاللہ تعالی یہی حکومت بہت جلد آپ کے پورے کرے گی۔ آپ کی تمام جو امیدیں ہیں ان پہ جو ہے، جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، حکومت سندھ ان پہ کام کر رہی ہے، دن رات کام جاری ہے، اور کافی اسکیم جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی جلد آئیں گے۔ شکیل صاحب یہ بتائیں کہ جہاں آپ نے یہ بات کی تو ایک اور خبر جس کی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے سماجی ویب سائٹ پہ ٹویٹ بھی کیا، 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے، اور اس پر کچھ شیڈول بھی قومی اسمبلی اور سینیٹ میں آیا ہے، کیا کہیں گا؟ دیکھیں جی، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر فیصلے پارٹی کے ساتھ مشاورت میں کرتے ہیں، حکومتوں میں چاہے شامل ہونا ہو، حکومتوں میں شامل نہیں ہونا ہو۔ ٹھیک ہے آپ 200 نہ رکھیں، لیکن کم سے کم اتنے رکھیں کہ ایک مزدور یا کسی فیکٹری میں کام کرنے والا بھی وہ چالان اگر غلطی ہو جائے تو بھر سکے۔ تو اس حوالے سے کوئی نظر ثانی کا بھی ہے کوئی آپ کے پاس آپشن؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے آپ نے کہا غلطی ہو جائے، غلطی کو انگلش میں کیا کہوں گا کہ ایک مسٹیک ہو گئی، ایک ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جائے تو وہ اس پہ نہیں ہوتی چیزیں، لیکن جو میں آپ کو بس سمجھانے کی کوشش کروں، ہم چاہ رہے کیا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو کوئی غریب مسکین مزدور آدمی، یہ غریب مسکین مزدور کی بات نہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بھی شخص ٹریفک قوانین کی جو ہے 100% پاسداری کرے، ٹریفک قوانین کی وائلیشن کرے ہی نہیں تو اس کی ہوگی نہیں، اس کا چالان ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ایز اے اسپوکس پرسن آف سندھ گورنمنٹ میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 روپے کا بھی کسی کو چالان نہ ہو، کہ لوگ سب اپنے ٹریفک قوانین کی پاسداری کریں، نہ چالان ہوگا، نہ کسی کو 1 روپے بھی بھرنا پڑے گا۔ ہم جو جلد، آپ خود سیٹسفائی تھے اس سے پہلے جس طریقے سے یہاں پہ ٹریفک کا نظام چل رہا تھا؟ نہیں، ہم بھی سیٹسفائی نہیں تھے نا، ہم لوگ خود چلاتے تھے کہ بھائی اس کی بہتری کیسے لے کر آئیں۔ عوام کو 10 دفعہ بتایا جاتا ہے، اپیلیں کی جاتی ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کی پاسداری کریں، تو یہ چیز تھی۔ ایک پریزیڈنٹ کے بعد آپ اسلام آباد میں تھے پچھلے دنوں، ملاقاتیں بھی ہوئی آپ کی جو سینئر لیڈرشپ تھی پارٹی کی، آپ یہ بتائیں کہ جو آزاد کشمیر میں ایک موو لے کر آ رہی تھی پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد، وہ سارا معاملہ کہاں چلا گیا؟ کیا وہ 27ویں ترمیم کے ساتھ نفی کر دیا گیا ہے جیسا کہ باتیں ہو رہی ہیں، یا کچھ ہونے جا رہا ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں جی،
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मूव की है, मूव चल रही है, मूव अभी कोई ख़त्म नहीं हुई है। वक्त का तयन जो है डेफिनेटली अभी सीसी की मीटिंग होगी, सीसी की मीटिंग में ये एजेंडा टॉप प्रायोरिटी पे ज़रूर होगा कि किस डेट को नो कॉन्फिडेंस लेकर आना है। तो वो जाहिर है कि एक एजेंडा में अभी तक कोई चीज़ मौजूद है, उसको कोई आप रूल आउट नहीं कर सकते। ये इनके बाद रकम बहुत ज्यादा है। आप लाहौर देखें, लाहौर की ये सवाल हो चुका है। रकम में इतना फर्क यानी दो शहरों में नहीं होना चाहिए, उस पर आप परेशानी करें। दूसरा ये डंपर 3-4 दिन में 7-8 लोगों को कुचल के जो है रोन दिया, वो हलाक हो गए। उस पे जो है हुकूमत डंपर माफिया से डरी हुई है, कोई कार्रवाई करने को डंपर के खिलाफ तैयार नहीं है। ना लाइसेंस चेक किए जा रहे हैं डंपर के, ना नंबर प्लेट डंपरों पे 100 की स्पीड पे चल रहे हैं, तो हादसा तो होंगे, आप उनके लिए कोई कर ही नहीं रहे। देखिए मैं आपकी बात बताऊं कि हुकूमत किसी भी से भी डरती नहीं है और हुकूमतों को डरना भी नहीं चाहिए, ना हमारी हुकूमत को, ना किसी और सूबे की हुकूमत को, ना वफाक की हुकूमत को। हुकूमत अपने कवानीन लेके आती है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी जो मैं इतनी सारी चीज़ें जो ट्रैफिक के चालान की हम बात कर रहे हैं, इससे इंसिडेंट कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। एक्सीडेंट्स कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। हमें यूज टू होना पड़ेगा ट्रैफिक कानून की पाबंदी में, चाहे वो डंपर का ड्राइवर हो, वो अगर गलत ड्राइविंग करेगा तो डेफिनेटली जो भी अभी तक इंसिडेंट हुए हैं वो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने भी अभी तक इंसिडेंट्स हुए हैं वो लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस सारी चीज़ों से छुटकारा कैसे हासिल होगा? जब आप ट्रैफिक की कानून करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली और कोई हल नहीं था ट्रैफिक कानून के लिए, हाईएस्ट पेनल्टी लगानी पड़ी। आपने दूसरे सूबों की बात की, देखिए हर सूबे का अपना अपना कानून है, हर सूबे की अपनी अपनी मर्जी है। ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो सूबा जो पॉलिसी समझे, हमने एक बेहतरी के लिए समझा और इसकी आप समेत मेरे ख्याल सब ने गवाही दी कि ट्रैफिक के इसमें बेहतरी आई है। लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे अब गाड़ियाँ सिग्नल से पहले रुक रही हैं। तो यही चीज़ हम चाहते हैं कि जी हर कोई पासदारी करे, और आपको तो इससे आपकी वक्त की पाबंदियाँ भी बेहतर होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, इक्का दुक्का चीज़ें चल रही होंगी, अब चालान जैसे कम होते जाएंगे, इसका मतलब लोग उसकी पासदारी कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल वो कहते हैं मादर पिदर आज़ाद कर दें कि जी ना कोई सिग्नल पर रुकना है, वन वे में कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, तो फिर वो आपको पता है कि लोगों के लिए भी परेशानी है और किसी भी कीमती जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। सर आपने फिटनेस सर्टिफिकेट के हवाले से भी बड़ी सख्ती से बात की थी यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। गुज़िश्ता 2 माह में हैवी ट्रैफिक को जो हैवी व्हीकल्स हैं, उन कितने हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स को आपने फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया, उसका भी जरा देखिए। जो हमारे पास फिटनेस के काम जो डेली बेसिस पे चल रहा होता है, अब आपका क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली 2 माह की फिगर बताएं, तो मैं फिगर आपको लेकर बता दूंगा। लेकिन डे टू डे बेसिस पे गाड़ियों की फिटनेस हो रही होती है, और जो गाड़ियाँ फिटनेस के लिए होती है वो इम्पाउंड हो रही होती हैं। हमारे पास एक पूरा एक ग्राउंड है जिसमें हम वो सारी चीज़ें इम्पाउंड कर रहे होते हैं, जहाँ जहाँ पे सारी चीज़ें। जंडीर साहब, हाँ शजीद साहब ये बता दें कि सिंध हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो अदालतों से रुक जाते हैं। अब इसी तरह बिल्कुल ये यकीनी तौर पे लोगों की बेहतरी के लिए ई चालान का मामला सिंध हुकूमत आई है, वो भी अदालत में चैलेंज हो गया। आप किस हद तक पर उम्मीद है? देखिए चैलेंज कोई भी कर सकता है ना। देखिए आईनी अदालतें हैं, कानूनी अदालतें हैं, आइन अदालतों में कोई भी जा सकता है, कोई भी अपनी कोई शहरी जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जाती जा सकता है, किसी को उसमें हम रोक नहीं सकते। हम हुकूमत का मैं जवाब नहीं, हमारा अपना मौक़िफ़ एक है, हुकूमत अपने मौक़िफ़ पे फर्म है, हम अदालतों में उन चीज़ों में जवाब देंगे। लाशारी साहब ये जो 27वीं तरमीम आ रही है वो नून लीग ला रही है, वफाक में वो है, और पंजाब में तो इसकी कोई मुखालफत नहीं हुई, लेकिन सिंध में बहुत बड़ी मुखालफत हो रही है। ये जो हमारे नेशनलिस्ट हैं वो मुखालफत कर रहे हैं, वकला बरादरी करे, पीपल्स पार्टी को कैसे जो है वो करेगी इसका सामना? देखिए 2 चीज़ें मैंने कहा ना, एक तो अभी पीपल्स पार्टी ने फैसला अभी किया नहीं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है किसी इस पे फैसला करेगी। जैसे आपने वकला की बात की, मैं तो आज देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसकी सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट आया, जो मैंने पढ़ा है, उस टाइम मैं गलत हूँ, जल्दबाजी में बहुत सारे अखबारें पढ़ रहा था, तो कहीं मैंने ये पढ़ लिया था, तो अगर गलती हो तो उसकी एडवांस में माफ़ी कर दीजिएगा आप लोग। बाकी ये कि मैंने कहीं सारी चीज़ पढ़ी है। जमाली साहब, अच्छा सर, एक सिंध का एक अहम मसला है जो शायद हुकूमत के लिए मेरा ख्याल अहम नहीं है कि हुकूमत उस पर बात नहीं करती। सिंध में पढ़े लिखे नौजवानों को CTD जैसा इदारा अस्पतालों से, उनके घरों से उठाकर गायब कर देती है, फिर जब उनको अदालतों में पेश किया जाता है, अदालतें उनको रिहा करती हैं, उसके बावजूद CTD अदालतों से उनको मिसिंग पर्सन कर देती है। ये सिंध हुकूमत के खिलाफ या तो कोई साजिश है, या तो सिंध हुकूमत इसको समझ नहीं रही है,
बलूचिस्तान जैसे हालात सिंध में पैदा किए जा रहे हैं जो आपकी हुकूमत के लिए बहुत खतरनाक है, इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए जी, मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं पे भी पुलिस या कोई भी ज्यादती करेगा तो हुकूमत उस पर सीरियस एक्शन लेगी। आपने जिस वाक़या की बात की है उस वाक़े पे भी अगर मैं था नहीं 2-3 दिन यहाँ पे, मैं इस्लामाबाद था, मैं सुबह को ही आज पहुँचा हूँ, लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर साहब से बात करूँगा कि अगर कोई इस तरह की चीज़ है तो उसकी इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल इंक्वायरी हो। कोई भी गुनहगार बचना नहीं चाहिए, कोई भी बेगुनाह जो है वो कभी भी उसको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। कल आपके सीईसी का इजलास है, वफाकी हुकूमत सूबाई वजीर सब वफाकी वजीर ने कहा था कि उन्हें अभी ड्राफ्ट का पता नहीं है, तो क्या वफाकी हुकूमत ने आपसे ड्राफ्ट शेयर किया है जिस पे आप कल गौर करेंगे? आपने अगर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ट्वीट पढ़ा हो तो उसमें वो सारी शिकें जो हैं उन्होंने लिखी हैं। अब जो ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट में होती है लैंग्वेज, ठीक है ना, तो कौन से लीगल लैंग्वेज यूज़ होती है। जो मेन आप इशूज़ जब डिस्कस कर रहे होते हैं बड़े बड़े फोरम्स पे, फिर आप ये ड्राफ्टिंग पे नहीं जा रहे होते, आप इशूज़ पे बात कर रहे होते हैं कि इस पर हमारा क्या मौक़िफ़ है, उस इशू पे हमारा क्या मौक़िफ़ है। आपने कहा कि हुकूमत किसी से डरती नहीं, और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कानून से बात पर कोई नहीं। हाल ही में बाहर के इलेक्शन हुए हैं, सरेआम मुखला जो है वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं, उनकी वीडियोस भी हैं। अभी तक कोई आम शख्स होता तो वो जेल के अंदर होता, तो आप डरते नहीं है? क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा, इसका जवाब देता हूँ आपको, गुड क्वेश्चन। अच्छा, मैं फिर बता दूं, ये रियासत की कानून के उसमें सामने सब गलत, सब बराबर हैं। अगर वकील साहिबान ने हवाई फायरिंग की है तो गलत किया है, गैर कानूनी काम किया है और वो नहीं करना चाहिए। अब यस अगेन कि जिस जिस इलाके में हुआ है, ठीक है ना, जिस जिस इलाके में हुआ है और जिस जिस शहर में हुआ है और जिस जिस थाने की हदूद में हुआ है, उन थानों को चाहिए कि जो आइन और कानून में सबके लिए कानून लिखा हुआ है वो उसमें शामिल किया जाए। इसमें ना किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें मतलब कोई भी ना करे ना, मतलब अगर कोई ना कोई पॉलिटिकल वर्कर करे, ना कोई जो है कोई वकील करे, ना कोई आम शहरी करे, ना लोग शादी बाराती में ये सारी हरकतें करें। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि इससे हादसात भी हो सकते हैं। क्यों पाबंदी क्यों है आप पे? मिसाल तो एक बंदा अपना वेपन से फायर कर, उसमें पाबंदी क्या? पाबंदी ये कि आप एक तो खौफ हरास फैलाते हैं इससे, दूसरा ये कि आप जो है उससे हादसात भी होते हैं। न्यू ईयर पे हम लोग क्यों मना कर रहे होते हैं सबको कि जी न्यू ईयर में फायरिंग वगैरह ना की जाए? लोग अरेस्ट भी होते हैं, लेकिन लोग करीब मारे भी जाते हैं। जब ये गोलियों के जब वापस ये खोल आ रहे होते हैं, इससे काफ़ी कीमती जानें जाती भी हैं। इसीलिए ये हुकूमतें हमेशा ये न्यू ईयर पे और बाकी इस तरह के त्योहारों में लोगों को मना करती है जी बराए मेहरबानी हवाई फायरिंग ना करें, ये इलीगल है। थैंक यू जी। लाइक करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।